Bismillahirrahmanirrahim. As you know that in our last class, we had started lesson number 1 from section prose, that was Durusun min al-Quranil Kareem, lessons from the Noble Quran. So far we have studied Suratul Quraysh, Suratul Ma'un, Suratul Falaq and Suratul Nas. These 4 surahs we have studied so far. Now we will proceed towards its exercises. Okay. In exercises, there are 5 types of questions which will be asked in your final exam. 5 types of questions will be asked in your final exam. Here, first, second, third, fourth. From section prose, 4 types of questions will be asked, and in section poetry, 5 types of questions will be asked in your final exam. So what he will ask you to give the summary of the surah in 6 marks. This will come in your section 3 of final exam. He will give you Suratul Quraysh, write the summary of Suratul Quraysh. You have to give the summary in your own language in not less than 100 words. How you have to produce the summary? 5 तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। 5 तरीके के क्वेश्चंस कौन से हैं वो? पहले तो समरी है, खुलासा, और दूसरा रेफरेंस यानी कि आपको सूरे की आयत देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से सूरे से ताल्लुक़ रखती है आयत। ठीक है। तीसरे सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर्स देंगे। चौथे वन वर्ड आंसर्स देंगे। तो ये एक्सरसाइजेस हम जो है ना आज सॉल्व करेंगे। From section prose, 4 types of questions will be asked in your final exam. Number 1 is summary. Among 4 surahs, any one summary he will ask you. The most important summaries from this lesson are Suratul Quraysh and Suratul Ma'un. These 2 summaries are very important, and remaining 2 are less important. Okay. So if you prepare these 2 surahs, this will be enough for your final exam, Suratul Quraysh and Suratul Ma'un. ये 2 सूरे अगर आप याद कर लेते हैं, इसका खुलासा पढ़ लेते हैं, तो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हो जाते हैं। सूरे फलक और सूरे नास बहुत ही कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन सूरतुल कुरैश और सूरतुल माउन, ये 2 सूरे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए हम पहले सूरतुल कुरैश की समरी पढ़ेंगे, उसके बाद सूरतुल माउन की पढ़ेंगे, फिर सूरे फलक और सूरे नास की भी पढ़ेंगे। पढ़ने में तो हमको सभी पढ़ना है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं ये 2 इंपॉर्टेंट सूरास पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू। लुक, सी ऑन द स्क्रीन। दिस इज द summary of Suratul Quraysh. Okay, he will ask you, Uktub khulasata Surati Quraysh. Write the summary of Surah Quraysh. Okay, in this way he will ask you in 6 marks section. It carries 6 marks. Here, summary, how you have to produce the summary? Here it is given. Summary is, first you have to write the heading, summary of this one, summary of Suratul Quraysh, summary of Surah Al-Quraysh. In this way you have to give the heading. Okay, then write the translation of verses. Okay. Then give the 4 translations. Give the translation of 4 verses of Suratul Quraysh. Okay. The first verse says,
टू अवेक ड्राइव अमॉन्ग द खुरैश, खुरैश के लोगों में सफ़र की तरगीब पैदा करने के लिए, सफ़र की तरगीब दिलाने के लिए, ठीक है, कुरैश को सफ़र की तरगीब दिलाने के लिए, दे वर एक्लिमेटाइज टू द समर एंड विंटर कमर्शियल ट्रिप्स, वो लोगों को आदी बना दिया गया सरमा गर्मा के तिजारती सफ़र करने पर, उनको आदी बना दिया गया। दे वर अकस्टम्ड, उनको जो है आदी बना दिया गया, हैबिचुअल बना दिया गया कि सरमा और गर्मा में वो लोग तिजारत के लिए जाए। वर्स 3 says, so they should worship the Lord of the sacred house, तो उनको चाहिए कि इबादत करें इस घर के परवरदिगार की। नेक्स्ट वर्स सेज, who has fed them in hunger and secured them from fear, जिसने भूख में खाना खिलाया और खौफ में अमन दिया। ये ट्रांसलेशंस पहले आप लिख देना, उसके बाद आपको जो है ना समरी लिखना रहता है। पहले ट्रांसलेशन लिखेंगे, उसके बाद समरी लिखेंगे। समरी में क्या बोल रहा है देखिए, दिस सूरा वॉज रिवील्ड इन मक्का, ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ। इट कंटेन्स 4 वर्सेस, इसमें 4 आयतें हैं, एंड 1 सेक्शन, और 1 रुकू है। इट इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस सूरा अल फील, ये सूरे का ताल्लुक अपने पहले वाले सूरे फील से है। दैट मेंशंस, जो ये कहता है, यानी सूरे फील में ये कहा गया है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल ऑफ एलिफेंट फॉर द सेक ऑफ कुरैश। सूरे फील के अंदर ये बयान किया गया है, हाथी वालों के तबाही का जिक्र किया गया है, हाथी वालों के तबाह व ताराज होने का जिक्र किया गया है कुरैश के लोगों की खातिर। कुरैश के लोगों की खातिर हाथी वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तबाह व ताराज कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, The people of Quraysh used to travel to Yemen and Syria without the fear of fools, dacoits, robbers, etc. कुरैश के लोग सफ़र पर जाते थे यमन को और मुल्क शाम को, यमन और मुल्क शाम को बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डाकुओं के, लुटेरों के और जो है चोरों के खौफ के बग़ैर जो है वो लोग सफ़र किया करते थे। दे यूज टू विजिट यमन इन विंटर सीजन, वो लोग जो है यमन का सफ़र करते थे विंटर सीजन यानी कि सरमा के मौसम में, बिकॉज इट वॉज अ हॉट कंट्री, क्योंकि वो गर्म मुल्क था। एंड दे यूज टू ट्रैवल टू सीरिया इन समर सीजन बिकॉज इट वॉज अ कोल्ड कंट्री, वो लोग सफ़र किया करते थे मुल्क शाम का गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में। 111 माइंड योर सेल्फ हियर, यूज टू ट्रैवल टू सीरिया इन समर सीजन, दे यूज टू, वो लोग सफ़र करते थे कहाँ पर, सीरिया का यानी मुल्क शाम का गर्मा के दिनों में, क्योंकि वो सर्द मुल्क था। ठीक है, क्योंकि वो जो है सर्द मुल्क था। द डेकोइट्स डू नॉट डेयर टू रॉब कारवान्स ऑफ कुरैश, लेकिन डाकुआ हिम्मत नहीं करते थे कि कुरैश के काफिलों को लूटे, बिकॉज क्योंकि अल्लाह हैड पुट फियर इन देयर हार्ट्स बाय डिस्ट्रक्टिंग द किंग अब्राहा एंड हिज आर्मी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था अब्राहा बादशाह को हलाक करके और उसकी फ़ौज को हलाक करके, जो है कुरैश के लोगों की अज़मत जो है ना अल्लाह ताला ने डाकुओं के दिलों में भी पैदा कर दी थी, उनके दिलों में खौफ पैदा हो गया था। ठीक है,
So Allah has ordered them to worship the Lord of the sacred house. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस घर के परवरदिगार की इबादत करो। द काबा, काबे के रब की इबादत करो, एज अ साइन ऑफ थैंक्स गिविंग टू हिम, शुक्रिया अदा करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए इस घर के परवरदिगार की इबादत करो। Who has fed them in hunger, that is provided them sustenance in starving conditions, जिसने भूख में खाना खिलाया, यानी कि उनको खुर्दनोश के मौके फराहम किए, जो है निहायत ही तंग मुश्किल जो है हालात में उनको खुर्दनोश के मौके फराहम किए। एंड सिक्योर्ड देम फ्रॉम द फियर ऑफ फूल्स, और अल्लाह ताला ने उनको डाकुओं चोरों के खौफ से अमन दिया। Because that is bless them with secure and peaceful life, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या किया, एक अमन और जो है शांति की जिंदगी अता की, अमन व अमान की जिंदगी अता फरमाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। दिस सूरा वाज एंटाइटल्ड आफ्टर द वर्ड कुरैश इन द फर्स्ट वर्स। इस सूरे का नाम पहली आयत से लिया गया है जिसमें कुरैश का जिक्र है। लीइलाफि कुरैश, कुरैश का जिक्र पहली आयत में है, तो इस सूरे का नाम पहली आयत से लेकर सूरे कुरैश रखा गया है। दिस इज द समरी ऑफ सूरतुल कुरैश। समझे आप? नाउ आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन विथ यू ऑफ सूरतुल माऊन। व्हाट this summary says, let us study. उक्तुब खुलासता सूरतिल माऊन, write the summary of surah al maun. Okay, उक्तुब खुलासता सूरतिल माऊन, write the summary of surah al maun. Okay, answer, summary of surah al maun. First you have to give the heading summary of surah al maun. सबसे पहले आपको जो है हेडिंग देना है सूरा अल माउन, समरी, खुलासा, सूरे माउन का खुलासा। इस तरीके से आपको समरी की हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाए बाद में सबसे पहले आपको लिखना है ट्रांसलेशन ऑफ वर्सेस। ट्रांसलेशन ऑफ वर्सेस का मतलब ये है कि आयतों का तर्जुमा, आयतों का तर्जुमा आपको पहले लिखना है। ठीक है। व्हाट द फर्स्ट वर्स सेज, पहली आयत में ये कहा जा रहा है कि हैव यू सीन हिम हु डिनाइज द डे ऑफ जजमेंट, क्या आपने उसको देखा है जो क़यामत के दिन का इनकार करता है? क्या आपने उसको देखा जो क़यामत के दिन का इनकार करता है? सेकेंड वर्स, सो ही इज द वन हु रिपल्सेस द ऑर्फन, तो ये वो है जो यतीम को धक्का देता है। थर्ड वर्स, एंड डज नॉट प्रोमोट द कॉज ऑफ फीडिंग पुअर, और गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, नहीं दिलाता। नेक्स्ट, सो वू टू दोज वर्शिपर्स, तो ऐसे इबादत गुजारों की खराबी है, ऐसे मुसल्लियों की खराबी है, ऐसे नमाजियों की, ऐसे इबादत गुजारों की खराबी है। Who are unaware of the spirit of their prayer, जो वाकिफ नहीं है अपने इबादत की रूह से, इबादत की असल से वाकिफ नहीं है, जो लोग इबादत की असल से वाकिफ नहीं है, ऐसे लोगों की खराबी है। Those who make show of their deeds, जो सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, दिखावा ही उनका सेवा है, दिखावे के लिए ही काम करते हैं। जो दिखावे के लिए काम करते हैं, ये देखिए वर्स 6 वर्स, दोज हु मेक शो ऑफ देयर डीड, सिर्फ दिखावे के लिए अमल करते हैं, दिखावे के लिए काम करते हैं।
What the seventh verse says, and who refuse to lend small objects of use even on demand. और वो लोग इनकार करते हैं, छोटी इनकार करते हैं जरूरत की चीजों का, अगर उनसे मांगे जाते हैं तो दे रिफ्यूज टू लेंड, दे देने से इनकार करते हैं। तो ऐसे लोगों की भी खराबी है। तो ये सातों आयतों का आप तर्जुमा पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको जो है यही सातों आयतों को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देने से समरी का खुलासा बन जाता है, सूरह माउन का खुलासा बन जाता है। Let us study further. This surah was revealed in Makkah. This surah was revealed in Makkah. इसका मतलब ये है कि ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ। It contains 7 verses and 1 section. इसमें 7 आयतें और एक रुकू है। It is named after the word al-maun in the last verse. इसका नाम al-maun रखा गया है जो आखिरी आयत से लिया गया है। वयमनऊन अल-माऊन जो कहा गया है आखिरी आयत में, and who refuse to lend the small objects of use even on demand, तो इस तरीके से उसका नाम लास्ट वर्स से अल-माऊन रखा गया है। It also called as सूरा ad-दीन the religion. इसको सूरे दीन भी कहते हैं, सूरे अल-यतीम भी कहते हैं the orphan, सूरा अल-माऊन नेबरली नीड्स भी कहते हैं, एक्सेट्रा। और दूसरे भी नाम हैं इसके, जिसके पास इल्म है वो लोग जानते हैं कि और दूसरे नाम क्या है। अब यहाँ पर जो है 1 2 3 नाम आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब आइए आगे क्या कह रहे हैं। आगे ये कहा जा रहा है, इट मेंशंस द इविल एक्ट्स ऑफ इन्फिडेल्स एंड देयर हैबिट्स। इस सूरे के अंदर काफिरों के बुरे आदतों का, बुरे कामों का जिक्र है और उनके बुरे आदतों का जिक्र है। लाइक जैसे दे डू नॉट बिलीव इन द हियर आफ्टर, वो लोग यकीन नहीं रखते मौत के बाद की जिंदगी में, यहाँ से जाने के बाद जो जिंदगी है उसके अंदर उनको यकीन नहीं है। दे एंड डिनाई द डे ऑफ जजमेंट, और क़यामत के दिन का इनकार करते हैं। दे डू नॉट शो मर्सी टू द ऑर्फेंस, और यतीमों पे रहम नहीं करते। इंस्टेड रिजेक्ट द नीड्स ऑफ ऑर्फेंस एंड डिप्राइव देम ऑफ देयर राइट्स, बजाय उसके वो लोग इनकार करते हैं और यतीमों की ज़रूरतों का इनकार करते हैं और उनके यतीमों को उनके हुकूक से महरूम कर देते हैं। एंड डू नॉट एनकरेज द फीडिंग ऑफ पुअर्स एंड नीडीज, और गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाते, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाते। दे डू नॉट स्ट्राइव टू एंड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर्स एंड नीडीज, और वो लोग कोशिश नहीं करते इस बात में कि लोगों का माशी इस्तेहसाल, गरीबों का माशी इस्तेहसाल, ज़रूरतमंदों का माशी इस्तेहसाल होता है, उसको दूर करने की ये लोग कोशिश नहीं करते। दिस सूरा ऑल्सो डिस्कसेस द कैरेक्टर ऑफ दोज who claim to be Muslims but they are oblivious of the life after death. ये सूरा उन लोगों के किरदार से भी बहस करता है। ये सूरा उन लोगों के किरदार के बारे में भी कहता है जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन वो लोग ऑब्लिवियस, नेग्लेक्टफुल है, यानी कि लापरवाह है अपनी आखिरत की ज़िंदगी से। मौत के बाद जो ज़िंदगी है उससे वो लोग गाफिल हैं, लापरवाह है, बेइतनाई हैं, मुंह मोड़े हुए हैं, गफलत बरत रहे हैं। दे डिप्राइव द ऑर्फेंस ऑफ देयर राइट्स, और वो लोग महरूम करते हैं यतीमों को उनके हुकूक से, यतीमों को उनके हुकूक देने से बाज रहते हैं और जो है यतीमों का हक अदा नहीं करते। एंड डू नॉट अर्ग द फीडिंग ऑफ पुअर्स, और न गरीबों को खाना खिलाने के लिए तवज्जो देते हैं। डू नॉट अर्ग, न जो है ना गरीबों को खाना खिलाने के लिए कोशिश करते हैं। दे
गिव चैरिटी ओनली टू शो ऑफ। वो लोग खैर खैरात दान दक्षिणा देते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए देते हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ द स्पिरिट ऑफ देयर प्रेयर। वो लोग वाकिफ ही नहीं है अपनी इबादत की रूह से, इबादत की असल से वाकिफ ही नहीं है। इबादत क्या चीज है, असल में इबादत क्या है, उससे नाआशना है। दे इवन रिजेक्ट टू लेंड द स्मॉल थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक। वो लोग इनकार करते हैं देने से। क्या देने से इनकार करते हैं? जरूरत की चीजें डेली जो यूज होती हैं, हमें घर में जो यूज होती हैं, डेली यूज होने वाली चीजें, जरूरत की चीजें जो है ना देने से इनकार करते हैं। जैसे कुकिंग पॉट, भगोना, बकेट, साल्ट, नमक, लैडर यानी कि सीढ़ी, वाटर, पानी एक्सेट्रा वगैरह। जैसे माचिस है, या फिर जरूरत की चीजें जो आपस में पड़ोसी एक दूसरे से मांगते हैं, वो चीजें देने से ये लोग इनकार करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ आगे फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला, सो वू टू ऑल दोज हु आर नेग्लेक्टफुल देयर प्रेयर्स। ऐसे तमाम लोगों की खराबी है जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। एंड दोज हु आर इन्वॉल्व इन दी अबव मेंशन हैबिट्स। और उन लोगों की भी खराबी है जिनका जिक्र अभी ऊपर किया गया है। Hence, the Muslim should believe in the day of judgment firmly. लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो आखिरत के दिन में पक्का यकीन रखे, क़यामत के दिन पर पक्का यकीन रखे। They should show mercy to poor and orphans. उनको चाहिए कि गरीबों यतीमों पे रहम करे, रहम से अच्छा मामला करे, उनसे उनके साथ अच्छा सलूक करे। They should arrange and encourage the act of feeding poor and needies. उनको चाहिए कि वो लोग जो है तरकीब दिलाएं गरीबों को और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने की तरकीब दिलाएं और खाना खिलाने का इंतज़ाम करें। ये काम करना चाहिए बोल के बता रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, यहां पर दे शुड नॉट इस्टेब्लिश ऑब्लिगेटरी प्रेयर ऑन टाइम। पिछले आपको क्या बताया गया था, इसमें ये बताए थे कि दे शुड अरेंज एंड इंकरेज द एक्ट ऑफ फीडिंग पुअर्स एंड नीडीज। पिछली आयत में आपको, पिछले जो है ना वर्क में आपको ये बता रहे थे कि वो लोग ज़रूरतमंदों को और गरीबों को खाना खिलाने का इंतज़ाम करना, और यानी तो कम से कम खाना खिलाने वालों को जो है ना इंकरेज करना, उनको जो है ना हिम्मत अफजाई करना, दिलासा बढ़ाई करना। और आगे बोल रहे हैं कि दे शुड इस्टेब्लिश 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स ऑन इट्स टाइम। उनको चाहिए कि 5 वक्त की फर्ज नमाजें अपने वक्त पर अदा करें। एंड दे should not deny to lend the daily use objects to neighbors, especially when demanded. उनको चाहिए कि वो लोग इनकार न करें ज़रूरत की चीज़ों का, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं अपने पड़ोसियों को देने से इनकार न करें, ख़ास तौर पर जबकि उनसे मांगी जाती हों। जब वो चीज़ें मांगी जाती हैं तो उसका इनकार न करें। दिस इज़ द समरी ऑफ सूरतुल माउन। ये थी सूरे माउन की समरी। इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? उक्तुब खुलासता सूरतिल फलक, राइट द समरी ऑफ सूरा फलक। ये भी पूछा जा सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। सूरे कुरैश और सूरे माउन इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है, और ये जो सूरे फलक और सूरे नास लेस इंपॉर्टेंट है। राइट द समरी ऑफ सूरा अल फलक। सूरे फलक की समरी लिखो। आंसर इज समरी ऑफ सूरा अल फलक, सूरे फलक की समरी।
ट्रांसलेशन ऑफ वर्सेस, आयतों का तर्जुमा पहले हम लिखेंगे। से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। फरमा दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई सीक रेफ्यूज इन द लॉर्ड ऑफ डे ब्रेक, मैं पनाह चाहता हूँ परवरदिगार की, दिन के, सुबह के परवरदिगार की। मैं पनाह चाहता हूँ सुबह के परवरदिगार की। फ्रॉम द ईविल दैट विच ही क्रिएटेड, हर उस शर से जिसको उसने पैदा किया है। एंड फ्रॉम द ईविल ऑफ डार्कनेस व्हेन इट प्रिवेल्स, और अंधेरे के शर से जब वो गहरा हो जाता है। एंड फ्रॉम द ईविल ऑफ ब्लोवर्स इन नॉट्स, और उन लोगों के शर से जो गीठियों पर फूंकते हैं। एंड फ्रॉम द ईविल ऑफ एन एनवियर व्हेन ही एनवीज, और हासिद के शर से, हासिद की बुराई से जब वो हसद करता है। ये 5 आयतों का जो है आप तर्जुमा लिखेंगे पहले समरी में, उसके बाद जो है समरी लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं समरी में, देखिए। दिस सूरा, दिस इज ए मदनी सूरा, ये सूरा मदनी है, मतलब मदीने में नाजिल हुआ है। इट कंटेन्स 5 वर्सेस, इसके अंदर 5 आयतें हैं। इट कंटेन्स 5 वर्सेस। Allah the Almighty has instructed prophet to seek refuge in him. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो अल्लाह की पनाह चाहें। किन चीज़ों से? फ्रॉम एवरी इविल ऑफ द क्रिएशन इन जनरल, हर उस शर से जिसको उसने पैदा किया है, आम तौर पर जिसको उसने पैदा किया है। Then he mentioned a few evils in particulars. फिर उसके बाद खास तौर पर पनाह मांगने की चीज़ों को भी जिक्र किया गया है, जैसे सच एज डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे के शर से, अंधेरे के शर से भी पनाह मांगी गई है। ब्लोवर्स इन द नॉट्स, घीटियों पर फूंकने वालों के शर से। एंड एनवियर्स पर्सन, एंड एनवियर पर्सन, और हासिद जलने वाले आदमी के शर से, जलने वाले लोगों के शर से भी पनाह मांगना खास तौर से इस आयतों में जिक्र किया गया है। अल्लाह हैज वार्न्ड द पीपल टू सीक रेफ्यूज इन हिम फ्रॉम द ईविल ऑफ द डार्कनेस ऑफ नाइट। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लोगों को हुक्म दिया है कि वो लोग अल्लाह की पनाह चाहें अंधेरे की बुराई से। दिस इज द टाइम, ये वो वक्त होता है, द जिन्स कम्स आउट, जिनों के निकलने का वक्त होता है, जिन बाहर निकलते हैं, जिन बाहर निकलते हैं, जिन बाहर आते हैं। दिस इज द टाइम द डेविल्स ट्रैवल, और यही वो वक्त होता है जब शयातीन सफ़र पे निकलते हैं। एंड दिस इज द टाइम द वाइल्ड एनिमल्स वॉक आउट इन द जंगल, यही वो वक्त होता है जब जंगली जानवर जंगल में बाहर निकलते हैं। दिस इज द टाइम द मैजिशियंस प्रैक्टिस देयर मैजिक, यही वो वक्त होता है यानी अंधेरा जिसमें जादूगर अपना जादू चलाते हैं, अपना जादू करते हैं। बाय ब्लोइंग ऑन नॉट्स, घीटियों पर फूंक मारकर, स्पेशली फीमेल मैजिशियंस, खास तौर से जो है जादूगर औरतें जादू करती हैं। सिमिलरली इट इज नेसेसरी टू टेक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम दी एनवियस पर्सन्स, इसी तरीके से हसद करने वाले के शर से भी ज़रूरी है कि अल्लाह की पनाह चाहें। क्यों? बिकॉज, क्योंकि बिकॉज व्हेन अ पर्सन बिकम एनवियस, जब एक आदमी हसद करने लगता है, जलने लगता है, ही में हार्म अदर्स, ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ही में हार्म अदर्स, ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। दिस सूरा
टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड फलक। ये सूरे का नाम पहली आयत फलक से लिया गया है, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। सूरतुल फलक में क्या है, कुल औदु बिरब्बिल फलक है ना, फर्स्ट वर्ड सा है, पहले जो है ना आयत में से इस सूरे का नाम फलक रखा गया है, विच मीन्स जिसके माने डे ब्रेक, सुबह है, डाउन, फजर का वक्त। एक्सप्लोजन के भी आते हैं माने, एक्सप्लोजन यानी कि एक धमाका, धमाके के भी आते हैं, फलक के माने आते हैं, एक्सेट्रा और दूसरे भी माने आते हैं। अल्लाह ताला ने जिनको इल्म दिया है वो लोग और भी माने बयान करते हैं इसके। ठीक है, नाउ ये था आपका सूरे फलक का